حاضرین مجلس، یہ ہمارا دروس المہمہ لعامت الامہ، عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق کا 13واں دن ہے، جس میں ہم لوگ سورۃ الفاتحہ سے گزر رہے تھے، اور سورۃ الفاتحہ میں ہم لوگ بس ٹکے ہوئے ہیں ایاک نعبد پر، اور اس ایاک نعبد یعنی عبادت کے قبول ہونے کی 2 کنڈیشنز ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ پہلی کنڈیشن اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری کنڈیشن وہ عمل سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں کنڈیشنز کسی عبادت میں پائی جاتی ہیں تو ہی قبول ہو سکتی ہیں، ادروائز قبول ہونے کا چانس اس میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ یہ ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا۔ اور یہ دونوں کی دونوں کنڈیشنز اگر ہوں تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وزن میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر یہ نہ ہوں تو بڑے سے بڑا عمل بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولنے والا ہے اور کاؤنٹ کرنے والا نہیں ہے، کاؤنٹ کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر کاؤنٹ کرے تو زیادہ عمل ہو تو کامیاب ہو سکتا ہے، کم عمل کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تولنے والا ہے، کاؤنٹ کرنے والا نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیں کیسے تولا جاتا ہے، اور چھوٹا عمل بھی کیسے بڑا بن جاتا ہے، اور بڑا عمل بھی چھوٹا کیسا بن جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے 4 باتیں اور 4 مثال رکھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی وہ 2 کنڈیشنز اگر ہوں تو، اگر وہ 2 کنڈیشنز اگر ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک آدمی کو پکارا جائے گا، ایک آدمی کو پکارا جائے گا، اور اس کو جب پکارا جائے گا تو اس کے سامنے 99 گناہوں کے دفتر جو ہے اس کے سامنے رکھے گئے ہیں، 99 گناہوں کے دفتر کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور ہر دفتر کی لمبائی مد البصر، اس کی نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں تک ایک ایک دفتر پھیلا ہوا ہے، اور ایسے 99 دفتر گناہوں کے رکھے گئے ہیں۔ اس آدمی سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا الک حسنہ، بندے تیرے پاس کوئی نیکی وغیرہ ہے کیا؟ مطلب اتنے گناہوں کے دفتر لے کر میرے پاس آ گئے، کوئی نیکی وغیرہ ہے کیا؟ لا یا ربی، پروردگارا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ اچھا الک عذر، بھئی اتنے سارے گناہ کرتے گئے تم، گناہ کرنے کا کوئی ریزن ہے کیا؟ میں مجبور تھا، گناہ کیا، یہ پرابلم تھا، گناہ کیا تھا، یہ عذر تھا، گناہ کیا تھا۔ کیا تمہارے گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری تھی، کوئی مشکل تھی جو اتنے گناہ کر کے میرے پاس آئے ہو؟ تو بندہ کہے گا لا یا ربی، پروردگارا میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں، کوئی ریزن بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کہے گا وَلَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةٌ، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اور وہ نیکی وزن میں اس قدر زیادہ ہے، ذرا تم جا کے تول کے دیکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ایک چھوٹی سی پرچی دے گا، ایک چھوٹی سی پرچی دے گا، اور اسے کہے گا کہ جاؤ اپنی پرچی کو اپنے ترازو میں جا کے ڈال دو۔ ایک ترازو کے پلڑے میں 99 گناہوں کے دفتر رکھے گئے ہیں، اور اللہ کہتا کہ یہ پرچی کو لے کر جاؤ ترازو میں رکھو۔ تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ، اتنے گناہوں کے سامنے چھوٹی پرچی کیا کام آ سکتی ہے؟ جاؤ تو صحیح، پلڑے پہ رکھو تو صحیح۔ جب پلڑے پہ رکھا جائے گا اس ایک پرچی کو تو یہ پلڑا ٹوٹلی بھاری ہو جائے گا، اور یہ پلڑا ٹوٹلی ہلکا ہو جائے گا۔
भाई पढ़ने में ये पर्चे में क्या था, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह था, ला इलाहा इल्लल्लाह इस पर्ची में था, और वो कलमा इखलास के साथ था, वो कलमा इखलास के साथ था। तो एक कलमा इखलास की वजह से होने की वजह से वो 99 गुनाहों के मुकाबले में, दफ्तर के मुकाबले में भारी हो गया। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी को देखा जाएगा। तो एक छोटी नेकी अगर इखलास के साथ हो, सुन्नत के मुताबिक हो, तो वो भारी बन सकती है। एक मिसाल आप लोग देखें, अगर इखलास हो तो क्या होगा, और अगर इखलास ना हो तो, इखलास ना हो तो, सुन्नत के मुताबिक ना हो तो क्या होगा। अब जरा देखें आप, कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तीन बड़े बड़े वीआईपीज को, जो दुनिया के थे, दुनिया के वीआईपीज को अल्लाह ताला बुलाएगा, और उनमें से एक आदमी बहुत बड़ा सखी यानी मालदार होगा। वो दुनिया में उसकी बहुत इज्जत थी, दुनिया के अंदर वो वीआईपी था, उसकी आओ भगत थी, उसके लिए सब कुछ रेस्पेक्ट के सारे स्टेज वहां पर सजाए जाते थे, वो मालदार बुलाया जाएगा। दूसरा बहुत बड़ा आलिम, वो भी दुनिया का एक जो है वीआईपी था, बहुत बड़ा आलिम था। और तीसरा अल्लाह की राह में लड़ने वाला, जिहाद करने वाला मुजाहिद, वो भी बहुत बड़ा वीआईपी था। और इन तीनों को बुलाया जाएगा और उनसे कहेगा कि भाई मालदार सखी साहब, आपने मेरे लिए क्या किया। तो कहेगा कि अल्लाह, मैंने सब कुछ तेरी खातिर लौटा दिया, जो था सब तेरे लिए था, सब तेरे रास्ते में लौटा दिया। तो अल्लाह कहेगा कि तेरे दिल में एक इरादा था कि मेरे माल की वजह से, ज़कात की वजह से लोग मेरी तारीफ करें, मेरी आवभगत करें, मेरी जो है मेरा सम्मान करें, ये तुम्हारे दिल में था। यानी जो दो कंडीशंस हैं, यानी एक इखलास की और सुन्नत के मुताबिक की, वो इसमें से एक कंडीशन नहीं थी। कौन सी? ये पहली कंडीशन उसके पास नहीं थी, पहली कंडीशन नहीं थी। एक कंडीशन ना होने की वजह से जिंदगी में जितना भी माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, वो सारा का सारा माल खत्म हो गया, और उसको सीधे हेल फायर में दाखिल कर दिया जाएगा, उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अमल बहुत ज्यादा है लेकिन इखलास नहीं है। और ये साहब, आलिम साहब, आपने क्या किया, आपने क्या कारनामा अंजाम दिया। अल्लाह, मैं तेरी खातिर रात दिन तेरा काम करता रहा। अल्लाह कहेगा कि ठीक है, तूने किया, लेकिन तेरे माइंड में भी, तेरे दिल में भी इखलास नहीं था। तारीफ थी, आवभगत थी, सम्मान था, दुनिया में मिल चुका, लोगों ने तुमको बहुत बड़ा आलिम तो समझ लिया, तारीफ की, लेकिन इखलास ना होने की वजह से तुम्हारा अंजाम भी इनके साथ ही यहां पर जाने वाला है। सेम मुजाहिद का मसला भी वैसे ही होगा। अमल बहुत ज्यादा था लेकिन इखलास नहीं था। इखलास ना हो तो अमल कितना भी हो वो काबिल कबूल नहीं हो सकता है। इखलास ना हो तो सारा अमल जाए। अच्छा भाई, अगर इखलास तो है, इखलास तो है लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं है। अब जरा देखो आप, वो भी तीन लोग हैं। कैसे मिसालें देखो, अल्लाह का रसूल किस तरह जो है लेकर आ रहे हैं। वो भी तीन लोग हैं, तीन सहाबा कराम हैं जिन्होंने नबी पर ईमान लाया, जिन्होंने नबी को देखा, कलमा पढ़ा। और ऐसे तीन सहाबा नबी के पास आते हैं, यानी नबी के घर को आते हैं, नबी के घर को आते हैं एक सवाल करने के लिए। और उस वक्त अल्लाह के रसूल घर में नहीं थे, अज़वाज मुतहरात घर में थे। तो एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अमल करते हैं। उन्होंने भी पूछा, उन्होंने पूछा, तो अज़वाज मुतहरात ने बता दिया, ऐसा 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 अमल करते हैं। तो इन तीनों ने उस अमल को कान्हुम तकालुहा, अरे रे 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 रे, इतना थोड़ा नबी अमल करते हैं। कोई बात नहीं, चूंकि नबी के अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो चुके हैं इसलिए वो थोड़ा अमल करते हैं। हम तो गुनहगार बंदे, अगर हम थोड़ा अमल करेंगे तो अमल चलने वाला नहीं है। एक ने कहा कि भाई मैं जिंदगी भर निकाह नहीं करूंगा,
मैं जिंदगी भर निकाह ही नहीं करूंगा। क्यों? निकाह करो तो जिम्मेदारी, काम, बच्चे, बीवी, फुला 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 फुला, ये झंझाट नहीं चाहिए मुझे। निकाह नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इबादत करता रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ इबादत करता रहूंगा। अच्छा, दूसरे ने कहा मैं जिंदगी भर रोजा रखता रहूंगा, मैं जिंदगी भर रोजा रखता रहूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं। तीसरे ने कहा मैं जिंदगी भर फुल नाइट अल्लाह ताला की इबादत करता रहूंगा, पूरी रात अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करता रहूंगा। अब जरा देखो आप, ये तीनों के तीनों जो है क्या कहते हैं उसको, बोल के चले गए। फिर अल्लाह के रसूल घर को आए तो अज़वाज मुत्तहरात ने कहा 3 लोग आए थे हमारे पास, ऐसा ऐसा ऐसा, वो बोल के चले गए। और तो अल्लाह के रसूल फौरन भागते भागते इन तीनों के पास आए, आकर कहा अंतुमुल्लज़ीना क़ुल्तुम कदा व कदा, क्या आप लोगों ने ऐसी सी बात कही? हाँ, अल्लाह के रसूल ने कहा है, आपके अमल को हमने छोटा समझा, आपके सारे गुनाह माफ हैं और हम थोड़ा अमल नहीं चलने वाला है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैं निकाह करता हूं, मैं रोजा रखता भी हूं, छोड़ता भी हूं, मैं रात में नमाज पढ़ता भी हूं और सोता भी रहता हूं। अगर तुम लोग मेरे तरीके के मुताबिक नहीं चलोगे तो तुम्हारा कोई अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता है। इरादा अच्छा है, काम भी अच्छा है, और जो है इनकी नीयत भी अच्छी है, इखलास भी बहुत ज्यादा इनके पास, लेकिन अगर उनके अमल में अगर सुन्नत नहीं है तो यह अमल भी काबिल कबूल नहीं होगा। तो पूरी इबादत का खुलासा यानी तोला जाएगा, गिना नहीं जाएगा। और फिर अगर इखलास है तो फिर वो सुन्नत मुताबिक है तो फिर वो काबिल कबूल होगा। इखलास है, सुन्नत नहीं है तो भी काबिल कबूल नहीं, सुन्नत के मुताबिक है, इखलास नहीं है तो भी काबिल कबूल नहीं है। तो ये यानी इबादत में 2 अंसर को याद रखना है। इबादत कितनी भी करो, इखलास होना जरूरी है, सुन्नत के मुताबिक होना जरूरी है। थोड़ी भी करोगे तो फिर जन्नत में जा सकते हैं इंशाअल्लाह। अगर सुन्नत नहीं है, इखलास नहीं, ज्यादा अमल कर रहे हैं, तब भी हमारा अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता। ये 2-3 बातें हम याद रखने की जरूरत है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम के दिलों में इखलास पैदा फरमाए और हमारे अमल को सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।